Hello everyone, welcome to Miniverse. One more our topper candidate with us to share her experience in this exam, sir. And she was preparing for the law CT 5 year, and in the काफी better score भी है. So now you people will see here. She will share what was the preparation strategy, किस तरह से इन्होंने prepare किया, कौन से study material को use किया, each and everything she will share with us. So पॉडकास्ट को एंड तक देखो एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें. सो कंटिन्यू पॉडकास्ट का अब देखोगे 1 by 1 सीरीज है, तो सारे अलग अलग स्टूडेंट के जो अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, सो यू पीपल विल गेट टू अंडरस्टैंड इजिली कि किस वे में क्या प्लान होगा. इसके पहले में जो स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था मॉक स्टडी, इट वाज वेरी ब्रिलियंट. सो हियर इज Ritika. So Ritika, just tell me about yourself. It means about your educational background and from where you belong, about your some family background, interest, why interest for law. ये सब सारे basic थोड़ा सा clear कर दो, then we will move forward for the strategy part. Yes, sir. So my name is Ritika Shukla and I'm from Banda, Uttar Pradesh. And my education qualification is I have completed my 10th from my hometown with 91.6%. And after that, I have completed my 11th and 12th from Banasali Vidyapeeth, Rajasthan. And after that, when I'm just studying science as a background, as my subject, so I think that really don't interest me. So I start searching for other options. So law as a career gives me a very intrigued about, and I'm very intrigued about the law as a subject. So I start searching more about that, and the COVID thing happened. So after that, when I was in my home, I start searching for the coaching material from where I have to start for the CLAT exam. Because every student who are preparing for law, they have their dream, their top 5 NLUs. Right. So I'm also preparing for that exam, but the exam don't go very well. So I got a rank something around 5,000. So I start preparing, and there is also a second attempt in December. So my father gives me a moral support, and he always motivated me कि बेटा give the another shot. तो मैंने फिर एग्जाम दिया उस चीज का. तो उस टाइम भी I'm preparing for ALET, focusing mainly on ALET, but I got a rank of 2,000 something. So after that, I'm just searching for other options because I think I'm not able to get the top 5 NLUs or NLU Delhi. So after knowing all about MHCAT, one of my friends, she is also in GLC Mumbai. So I contacted her. She told me about Maneuver. From the day first, I have contacted to Maneuver when I start preparing for MHCAT exam. So I taken the MHCAT test series for 2 or 3 months. And I'm preparing constantly for the exam because I have a main dream of getting a good score so I can get the top colleges of MHCAT exam. So talking about the preparation and the strategy. So पहले तो मैंने ये समझा कि सिलेबस क्या है और मैं इस सिलेबस को समझ पाऊंगी, कर पाऊंगी कि नहीं. तो इसमें मेन 5 सब्जेक्ट्स थे. तो पहला सब्जेक्ट तो मुझे मतलब बहुत सही लग रहा था, वो है लॉजिकल रीजनिंग. और लॉजिकल रीजनिंग मुझे अच्छी लगती थी, तो मैंने मेनली उसको पढ़ना स्टार्ट किया. जब मेरा बेसिक क्लियर हो गया तो मैंने मैन्यूवर को तुरंत शायद एक दिन में मैंने सब मैम से और सर से बात की कि मुझे सीरीज लेनी है. तो मैंने पहले ही सीरीज में मेरा टेस्ट सीरीज हुआ था, तो आई स्कोर्ड समथिंग अबाउट 110. तो मैं फर्स्ट मॉक टेस्ट. Yes sir, in first mock test. After that 1111, 1113. तो मैं बहुत खुश थी कि अरे स्कोर अच्छा आ रहा है. फिर कॉन्स्टेंटली जब थोड़ा मॉक हार्ड होने लगे तो मेरा स्कोर गया 103 में, 105 में. तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आने लगे. तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा जीके स्टैटिक पार्ट पे बहुत ज्यादा फोर्स मतलब देखना पड़ेगा कि स्टैटिक मेन, क्योंकि जब मैंने सर के आपके जनरल नॉलेज के वीडियोस देखे और सर के वीडियोस देखे तो मुझे लगा कि स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप लोग बहुत ज्यादा वो डालते थे वीडियोस की 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज. तो मैंने उसको बहुत ज्यादा फॉलो किया. मेरे फादर मतलब उनका बीमा कंपनी है, तो मैंने उनका भी बहुत फायदा उठाया. मैंने प्रिंट आउट उनसे निकलवाना चालू किया और मैंने रोज मतलब एक माइंडसेट था कि 10 दिन में मुझे 5 डेज में, आफ्टर 5 डेज मुझे इसको रिवाइज करना ही करना है. तो मैंने पूरे नोट्स की लिस्ट बनाई और मैंने स्टैटिक पार्ट मेन अपना स्ट्रॉन्ग रखा. तो
और पेपर के दिन मुझे ऐसा लगा पेपर इजी था। जब मेरा स्कोर आया सर तो मुझे लगा मैंने बहुत कम स्कोर मेरा आया है, क्योंकि 116, तो मुझे लगा कि मैं रेंज समथिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरा 137 138 जाएगा। फिर मैंने लोगों के टेलीग्राम में मैसेज देखे तो लगा अरे थोड़ा तो सही है मेरा स्कोर। तो मैंने कहा स्कोर तो सही है, अब आगे का जब फिर मैंने मैनेवर से बात की कि सर मेरा इतना स्कोर आया, तो सर कहते हैं रिलैक्स, यू आर गोइंग टू टॉप 5 कॉलेजेस। मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच सर। तो इसी तरह फिर मैंने तब फिर उसके बाद मेन चीज की पेपर में आप कैसे रहो, तो सबसे मेन चीज आप पेपर दो तो मेन चीज रखो कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत रहो, क्योंकि एमएचसीएट इजी होता है, लेकिन जब आप उस ऑन द स्पॉट कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि आंसर्स मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक क्वेश्चन आया था वो मशरूम वाला, और मुझे उसका आंसर पता था कि वो एडिबल फंगाई है, लेकिन मैं उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। तो आप कंफ्यूजन मत रखो, बहुत ज्यादा क्लियर रखो, क्योंकि एमएचसीएट एग्जाम क्रैक हो सकता है। आप अपने मैथ्स के लिए लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, मैंने जब क्लैट की प्रिपरेशन भी कर रही थी तो लोग बहुत ज्यादा मैथ्स को लेके परेशान रहते हैं कि मुझसे मैथ्स नहीं होगा। मैथ्स एमएचसीएट का ऐसा कुछ भी नहीं। आप अपने, अगर आपने 10th में सबका मैथ्स होता है, आप अपना बेसिक्स क्लियर रखो, परसेंटेज सब में फर्स्ट सेकंड। नॉर्मल मैथमेटिक्स बेटर है तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, 10 मार्क्स का वेटेज है, 7-8 क्वेश्चन तो काफी इजीली हो ही जाता है। यस, तो मुझे 10 क्वेश्चन से मैं जब उस पे गई तो आराम से मेरा 9 स्कोर जा रहा था। तो मुझे एक क्वेश्चन में डाउट था, वो फेस वाला जब आया तो उसमें भी मेरा डाउट था, जब मैंने उसको किया तो हो गया, लेकिन बाय मिस्टेक मुझे समझ में नहीं आया। तो आप मैथ्स, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो मैथ्स आपका आराम से हो सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड आता है आपका लीगल बहुत इजी आते हैं, मतलब आप कि अगर बेसिक्स क्लियर है, सारे जितने भी एमएचसीएट के सेक्शंस होते हैं उसमें आपको मेन चीज रखनी है कि आप जितने भी टाइम प्रिपेयर करो, सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करो, चाहे वो लीगल का बेसिक्स हो या फिर इंग्लिश का हो। इंग्लिश में भी आपको बेसिक्स बहुत माइन्यूट बेसिक, क्योंकि वो लोग आपको ये नॉलेज नहीं चेक कर रहे कि आप लीगल में क्या सोचते हो, आपकी क्या नॉलेज है, वो तो आपको वहां पढ़ाएंगे। तो मेन चीज रखो कि आपको वो जो सेंटेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपको ज्यादा थिंकिंग नहीं, हम लोग कोचिंग में पढ़ लेते हैं कि हाँ ये पूरे कंक्लूजन ले आते हैं, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं पूछते, वो लाइन देते हैं, आपको उसमें बताना है कि ऑन द स्पॉट आप क्या उस बारे में सोच रहे हो। Basically, that is also one type of reasoning, ना, legal reasoning. It's called the legal reasoning. It means आपके logical part को थोड़ा सा टेस्ट करते हैं वो लोग। हाँ, सो लॉजिकल पार्ट, रीजनिंग और लॉजिकल आपको बहुत ज्यादा मेन चीज है कि वो स्कोरिंग भी बहुत ज्यादा और कंफ्यूजिंग भी एट द सेम पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आपको बहुत, मैंने बहुत, जब मैंने मैन्युवर की मैंने 30 मॉक सीरीज ली थी, 20 का मैंने मॉक सीरीज लिया था और 10 मेरा सेक्शन का था। तो 10 मैंने पहले सेक्शन बहुत ज्यादा क्लियर कर लिया था कि मुझे सेक्शन में पता चल जाए कि पेपर आता कैसे। फिर मैंने जब मतलब मैंने 15 मॉक दिए थे, हाईएस्ट मेरा 119 गया था मॉक में। तो फिर लास्ट के 5 मॉक्स बचे थे, तो मेरे पास इतना मैं नहीं दे पाई, तो मैंने केवल जनरल नॉलेज, क्योंकि सर से यूट्यूब में हमेशा डालते थे कि आप जनरल नॉलेज पढ़ लो, लीगल रीजनिंग पढ़ लो। और टू बी ऑनेस्ट, थैंक यू सो मच, क्योंकि कई क्वेश्चंस जीके के हों या फिर हम लोगों के लीगल के हों, काफी क्वेश्चंस मैन्युवर से उसमें आए थे। एक क्वेश्चन मुझे अभी भी याद है, ब्रह्मो समाज का जो आया था, तो मैंने जब वो क्वेश्चन देखा मैंने कहा ये तो बहुत बार हम लोगों को पढ़ाया गया है उसमें। तो मैन्युवर मुझे लगता है मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प की है मैन्युवर ने। आई एम वेरी थैंकफुल टू मैन्युवर। और 3 सब्जेक्ट्स हो गए। यस सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि जब मेरा स्कोर आया तो मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मैंने अपने फादर को तुरंत कॉल किया, और आपके सामने अगर मैं बैठी हूँ, मैं सच बताऊं सर तो ये मेरे केवल फादर, क्योंकि मेरे फादर कैंसर पेशेंट है, और जितना मॉरल सपोर्ट मेरे फादर ने मुझको और मेरी मदर ने दिया है, और मेरे दादा, इन तीनों की वजह से ही सर मैं आपके सामने बैठ के इंटरव्यू दे पा रही हूँ। Definitely, this is the family support and your hard work. So definitely hard work कभी बेकार नहीं जाता है। तो जो भी आपने फैमिली सपोर्ट के साथ ये एफर्ट किया है, और योर मार्क्स इज डेफिनेटली गुड मार्क्स है, मतलब जो जिस पीरियड में, जितने पीरियड में आपने ये प्रिपरेशंस किया है, नो डाउट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सम अदर एग्जाम, बट इस एग्जाम्स के लिए जो आपने प्रिपरेशन किया विद इन दिस लिमिटेड टाइम एंड ये स्कोर आपने गेन किया है, सो दिस इज नॉट वेरी इजी फॉर अदर स्टूडेंट। सो कहीं ना कहीं इसके पीछे फैमिली का सपोर्ट एंड योर हार्डवर्क इज हियर। Yes, sir. This is possible because of my parents.
and my family members and Maneuver and my friends Rashi and some of my special friends. This could be possible because I'm preparing for and I'm thinking कि मुझे केवल टॉप कॉलेजेस में जाना है, तो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स हमेशा सपोर्ट करते हैं कि तुम अगर सोचा है तो तुम जाओगी। तो अगर मैं आपके सामने इंटरव्यू भी दे रही हूँ, तो पहले दिन जब मैंने MHCET के लिए प्रिपेयर किया था, मैनेवर की सीरीज ली, मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मुझे इन सर को मुझे इंटरव्यू देना है, तभी मेरा MHCET सही से मैं प्रिपेयर। कहती बेटा दो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू आर मेंशनिंग हियर कि आपने पहले दिन ही ये सोच लिया। सो इट मींस क्योंकि मैंने सर गायत्री मैंने बहुत सारे आपके मैनेवर मैंने बहुत ज्यादा गो थ्रू किया, मैंने सारे पॉडकास्ट देखे, मैंने कहा इस पॉडकास्ट में मुझे भी एक पार्ट होना है। सो नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। कैसा लग रहा है? बहुत, आई एम ऑन द क्लाउड 9 सर, आई कांट एक्सप्लेन हाउ आई एम फीलिंग, but yes, I'm very thankful to my teachers, my family and my father. Upcoming years के जो स्टूडेंट होंगे, they will see you and they will learn something from you. It means after definitely because मैं 2 साल की प्रिपरेशन मैंने की है, तो फैमिली सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है एज यू मेंशनिंग हियर। तो जैसे आपने बताया आपके फादर्स एंड व्हाटएवर, सो डेफिनेटली एंड व्हाटएवर द कॉलेज यू आर टारगेटिंग, सो होप सो कि वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि डोंट वरी अबाउट इट, कट ऑफ काफी ऊपर नीचे होते रहता है। तो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऑल आर देयर, तो उसके लिए रेडी रहो। डॉक्यूमेंट्स सारे प्रॉपर्स आपको रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो कि किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की वजह से कोई रिजेक्शन हो गया, तो आई विल सजेस्ट फ्रॉम माई एंड कि ये आपको ओके पूरा रखना है। यस सर। ओके, सो नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। इट मींस बेसिकली टोटल कितने मंथ आपने प्रिपरेशंस को दिया लॉ सिटी 3? MHCET के लिए मैंने सर टोटली 3 मंथ्स दिए थे, 3 to 4 मंथ्स, क्योंकि 2 अप्रैल को पहला एग्जाम होना था, तो मैंने 1 जनवरी से, मुझे डेट याद है, 1 जनवरी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी कि मुझे जीके मैंने स्टार्ट किया कि जीके प्रिपेयर करती हूँ, करंट अफेयर्स, क्योंकि जब मैंने क्लैट दिया तो मेरा करंट अफेयर्स पार्ट छूट गया था, तो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने स्टैटिक पार्ट ल्यूसेंट से मैंने कवर की थी जो वीडियो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अगर मेरे पास बुक है तो वो हेल्प करती है, लेकिन मुझे वीडियोस जो रहते हैं अवेलेबल उसने काफी ज्यादा हेल्प की है, क्योंकि वो मटेरियल आपके ब्रेन में बहुत जल्दी कैचअप हो जाता है कि हाँ ये था। तो मेन आप स्टार्टिंग जब करो किसी भी मतलब MHCET के लिए, तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स को साथ में लो, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन अगर 30 मार्क्स का आपका आ रहा है जीके का, तो उसमें 22 मार्क्स केवल आपका स्टैटिक पार्ट रहता है, तो वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। 1-2 आई विल मेंशन हियर कि कंटिन्यू देखो पैटर्न चेंज होते रहता है, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो नंबर ऑफ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज्यादा आते थे, बट लास्ट 2 ईयर से स्टैटिक के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अपने को प्रिपरेशन पूरा करके जाना है, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर करंट अफेयर्स हो, एग्जामिनर कुछ भी पूछे। और जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैं टॉप क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करता था कि ये क्वेश्चन स्टडी कर लो वहां से, तो उस सब सारे कंटेंट से क्या एक्सपेक्टेशन, मतलब जो क्वेश्चंस आए थे, मतलब एज इन एक्चुअल एग्जाम कैसा था? बहुत ज्यादा हेल्प की थी सर उनने, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट में आपके वीडियोस डाउनलोड कर लिए थे, और मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी और मैंने डाउनलोड करके लास्ट मैंने केवल वो वीडियोस फॉलो अप किए थे कि अब रिवीजन नहीं करना, इन मतलब सर के जो वीडियोस है उन्हीं को फॉलो किया, और मेरे आई थिंक आई एम स्कोरिंग अराउंड 24, 25 इन 27 आई थिंक इन जीके, सो जीके रियली हेल्प्स मी। मतलब वो जो लास्ट मोमेंट पे हमने प्रोवाइड किया था वो भी काफी हेल्पफुल था, उसमें से क्वेश्चन हाँ, सो पीडीएफ आपकी अवेलेबल थी, तो पीडीएफ ने बहुत हेल्प की थी। ओके, और मॉक के अकॉर्डिंग कोई स्ट्रेटजी आपकी स्पेसिफिक, कितने मॉक अटेम्प्ट किए थे टोटल? तो मैंने 15 मॉक्स अटेम्प्ट किए थे, 20 और प्लस 10 की सेक्शन सीरीज ली थी, तो 15 मैंने अटेम्प्ट कर लिए थे, और 5 की मैंने लीगल और जीके पूरी कंप्लीट की थी, उसके नोट्स बनाना, क्योंकि मतलब आप मॉक जरूर दीजिए, लेकिन मेन चीज है कि उसका एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं 1 घंटा केवल एनालाइज करती थी कि मेरे मार्क्स कट कहाँ हुए, तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट। सो हियर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि और भी पहले लोगों ने भी मेंशन किया, जिस स्टूडेंट के हम पॉडकास्ट कर रहे थे उन्होंने भी यही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि मॉक एंड प्लस एनालिसिस ऑफ द मॉक बोथ इज इम्पॉर्टेंट, मतलब मॉक देना है एंड फिर मॉक को एनालिसिस करना है। तो ये पॉइंट जो भी एस्पिरेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो नोट करके रख लो। आई विल सजेस्ट
कि ये स्ट्रैटेजी 100% आपको फॉलो करनी है इफ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम्स. ओके. Yes, sir. Okay, so any suggestion from your end for the aspirant for the next year जो भी next year के लिए प्लान कर रहे हैं? तो मेरा यही सजेशन है, पहला तो पेरेंट्स के लिए कि प्लीज आप सपोर्ट करो मेंटली, स्टूडेंट को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो मेरी फैमिली से मुझे बहुत मिला है. और सेकेंडली आप प्लीज अपना माइंडसेट रखो कि मुझे एग्जाम क्लियर करना ही करना है, क्योंकि आप सेकंड ऑप्शन रखो ही नहीं. और हर दिन के लिए मैंने ये सजेशन, कई लोग देते हैं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट मत रखिए, एक दिन में आप कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट रखिए. आप टाइमिंग अलॉट कीजिए कि हाँ इतनी देर में मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है. राइट. तो आपका हर मंथ में आपका जीके, आपको ये कंफर्म रखना है कि मुझे जीके में कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन स्टैटिक और करंट दोनों का करना है. नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. लीगल को आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि नोट्स आपके हैं तो आपको खुद इंपॉर्टेंट, कभी आपने देखा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और मैथ्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी उसमें कोई क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि मैथ्स आपके 1-2 मार्क्स से आपका कॉलेज डिसाइड करते हैं. और मैथ्स एज कंपेयर आप अपना बेसिक्स क्लियर रखेंगे तो आपके लिए मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है, तो आप अपना बेसिक्स क्लियर रखिए उसमें. राइट. तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया. फर्स्ट थिंग कि एज पर सारे सेक्शन के अंडरस्टैंडिंग एंड देयर नोट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट. इट मींस नोट्स आपको अच्छे से बनाना है सारे सेक्शंस के अकॉर्डिंग, बिकॉज इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर एंड ऑफ द स्टडी. रिविजन्स के लिए काफी बेटर होता है कि अननेसेसरी आपको फिर से बुक सारी चीजें पूरा देखना नहीं होता. जैसे नोट्स है तो रिविजन्स के लिए काफी अच्छे से कर सकते हो. एंड सारे सेक्शंस के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के सेक्शन अगर कम भी है तो उसको ऐसा नहीं समझो कि 10 ही क्वेश्चन है, वो काफी हेल्पफुल रहता है मेरिट को इंक्रीज करने के लिए. राइट. यस सर, क्योंकि लॉजिकल में भी वो आपको काफी हेल्प करता है, क्योंकि एक लॉजिकल में क्वेश्चन आया था हम लोगों का टाइम एंड वर्क का. कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टाइम एंड वर्क का मैथ्स में आएगा, लेकिन एक स्लॉट 1 में मेरा आया था टाइम एंड वर्क का. वो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो वो आपको लॉजिकल में भी मैथ सेक्शन बेसिक्स हेल्प करता है, क्योंकि लॉजिकल 40 मार्क्स की है, तो आपको कम से कम 35 प्लस तो उसमें चाहिए. तो अगर आपका मैथ्स क्लियर है तो आपका लॉजिकल भी बहुत आराम से क्लियर है, क्योंकि सीरीज आएगी, सीरीज में भी बहुत हेल्प करता है. तो लॉजिकल सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफिकल्ट भी नहीं है. आई थिंक आउट ऑफ 40-35 स्कोर है ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट. जो भी लास्ट जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग पजल्स तो बहुत कम आ रहे हैं, तो सारे ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल रीजनिंग के ही क्वेश्चंस है मोस्टली. तो अगर कोई अच्छे से स्टडी करे तो आराम से इजीली स्कोर कर सकता है. यस सर. टाइम मैनेजमेंट को लेके व्हाट इज योर सजेशन फॉर द एग्जाम्स? मतलब जो एग्जाम्स हॉल, जो एक्चुअल एग्जाम हॉल में जब भी आपने अपीयर किया, यस सर, एक्चुअल एग्जाम में टाइम वर्सेस जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे उनको अटेम्प्ट करने में क्या मतलब मेंटल प्रेशर, व्हाट वाज द मेंटल प्रेशर? इट मींस इज इट हैक्टिक कि टाइम बहुत जल्दी खत्म हो गया, या फिर आराम से इजीली कोई अटेम्प्ट करे तो कर सकता है? व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस इन एक्चुअल एग्जाम हॉल? यस सर. सर जब मैंने क्लैट दिया था तो वो मेरे लिए बहुत हैक्टिक था. तो क्लैट का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, तो जब मैंने एमएचसीएट का एग्जाम दिया तो मैं बहुत ज्यादा, मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे कंफ्यूज नहीं होना, और मैं प्रेशराइज जितना होंगी उतना मैं अपने पेपर को स्पॉइल कर सकती हूँ. तो एट द मोमेंट मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स थी. मैंने स्टार्टिंग की लीगल से, मुझे लगा कि क्योंकि मैंने काफी आपके सेशंस भी देखे तो लीगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मुझे लगा 40 मार्क्स का है, तो मैंने रीडिंग स्टार्ट. लीगल में अप्रॉक्स मेरा 20 मिनट्स लिए थे, तो मैंने लीगल 40 क्वेश्चन मैंने 20 मिनट्स में कंप्लीट किया, और एक क्वेश्चन मैंने केवल रिव्यू के लिए रखा था कि मैं बाद में उसको देखूं. फिर मैंने जंप किया था मैथ्स में, क्योंकि मुझे लगा रीडिंग सेक्शन हो गया है तो अब थोड़ा मैं मैथ्स सेक्शन कर सकती हूँ, तो मैंने मैथ्स स्टार्ट किया. मैथ्स में हार्डली मुझको 8 या 7 मिनट्स लगे थे, मेरे 10 क्वेश्चंस हो गए थे. फिर मुझे लगा कि मुझे अब इंग्लिश में जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत स्टार्टिंग में सोच लिया था, मॉक भी देती थी कि मुझे रीडिंग, फिर मैंने अपना सॉल्विंग का, फिर रीडिंग, ऐसा मैंने मेंटेन किया था कि यही पैटर्न रखना है, क्योंकि अगर मैं रीडिंग रखूंगी तो मैं प्रेशराइज हो जाऊंगी, कंफ्यूज हो जाऊंगी. तो मैंने रीडिंग रखा, लीगल, फिर मैथ्स, फिर उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश किया था, क्योंकि इंग्लिश में भी क्वेश्चंस सही अच्छे थे, रीडिंग के काफी, क्योंकि स्लॉट 1 में हम लोगों को रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नहीं आया था, तो रीडिंग सेक्शन मेरा, इंग्लिश सेक्शन भी 15-20 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था. फिर मैंने लॉजिकल लिया. लॉजिकल में मुझे लगा था
25 मिनट्स और मेरा लॉजिकल में 40 क्वेश्चंस हो गए थे। एक क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन थी, वो मुझे आज भी अभी भी याद है, क्योंकि 280 क्वेश्चन, मतलब उसमें एक सीरीज आई थी जिसमें 260 और 280 में कंफ्यूजन थी, तो मैंने उसको बाद में चेक किया, तो मेरा फाइनली आंसर सही था। फिर लास्ट में मैंने अपना जो सेक्शन थे उसको दोबारा 2 बार रिवीजन किया था, तो मुझे ये लगा कि थोड़ी चीजें मैंने बाद में, जब आप इतना टाइम रखो कि आप रिवाइज कर सको, क्योंकि आपके पास एमएससीएट में रिवीजन के लिए टाइम होता है कि आप चेक कर लो कि कहीं मिस्टेक तो नहीं किया हम लोगों ने बाय मिस्टेक, तो यही पैटर्न मैंने फॉलो किया था। So basically आपने सारे सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी, एज वेल एज आफ्टर अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चंस यू हैव सम टाइम फॉर द रिवीजन, इट मीन सारे क्वेश्चन को आप रिवाइज भी कर सकते हो। सो अगेन यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करूंगा फॉर द व्यूअर्स कि टाइम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सीईटी एग्जाम में, नोट डाउन कर लो। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ है आपके नॉलेज का, आपको जो भी पूरा सिलेबस है अच्छे से कवर करना है। अगर से किसी ने भी अच्छे से कवर किया है पूरा सिलेबस को सो इजीली अटेम्प्ट कर सकता है, बट ये है कि उस सारे सिलेबस को अच्छे ट्रिक्स के साथ आपको लर्न करना है। वॉट एवर द कंटेंट जो भी फॉलो कर रहे हो, जो भी रीजनिंग के लिए, जो भी इंग्लिश के लिए, जो भी जीके के लिए, उस कंटेंट को अच्छे से रिविजन्स, वो कंटेंट भी काफी रेलिवेंट होना चाहिए, एंड जो भी आप लर्न करोगे रीजनिंग मैथमेटिक्स के लिए वो ट्रिक्स अच्छे होने चाहिए, तो डेफिनेटली आप इजीली अटेम्प्ट कर सकता है कोई भी, राइट? Yes sir, you're definitely right sir. Anything else you want to share? Sir, that's all, और all the best जो 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और आप डेफिनेटली क्रैक करोगे एग्जाम, अगर आप बहुत ज्यादा कांस्टेंट हो, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना इजी है, बस आपको कांस्टेंट रहना है। तो कंसिस्टेंट वे में प्रैक्टिस करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फैमिली फंक्शंस हो गए, लोग शादी के लिए चले जाते हैं, तो मेरे घर में मेरे जो दादा हैं वो इन चीजों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है कि ये सब नहीं, तो मेरी हेल्प बहुत होती है इनसे कि आपको अपना एनवायरनमेंट भी ऐसा रखना है कि मुझे पढ़ना है और मुझे टॉप कॉलेजेस में ही एडमिशन लेना है, तो एम शुड बी वेरी क्लियर, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ द टॉप कॉलेजेस, तो आपको एनवायरनमेंट और सराउंडिंग पे भी बहुत ध्यान रखना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं रखना। मैं ये, कई लोग सजेस्ट करते हैं कि सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, मैंने सोशल मीडिया इतना दूर नहीं, लेकिन आप मेंटेन रखो कि आप अपना माइंडसेट क्लियर रखो कि आप इतने छोटे भी रहे हो कि आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि इसको समझाने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने आप को खुद समझ सकते हो, क्योंकि यू आर वेल इनफ कि आप इतने छोटे भी नहीं हो। तो okay, so thanks Ritika to come here to share your valuable experience and some suggestion also for our students. So जो भी next year के लिए plan कर रहे हैं, hope so this conversation, this suggestion, whatever her experience, it will be very helpful for you guys. So try करो, आप follow करो, जो भी it means एक firm determination होना चाहिए, जो भी target कर रहे हो तो उसको target करो, एक consistent way में practice करो, सिलेबस पूरा क्लियर होना चाहिए। सो अगर से कोई राइट वे में प्रिपेयर करेगा तो डेफिनेटली व्हाट एवर द कॉलेज ही और सी इज टारगेटिंग सो मिल जाएगा। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन Ritika and coming to here to share your experience. Thank you so much sir for having me here. Thank you so much sir. Okay.